in a unipolar world. Among the concerns about the reform and restoration of the UN has been the hope of some countries that change could help the UN cope better with the unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rival. Can the UN serve as a balance against the US dominancy? Can it hope maintains the dialogues between the rest of the world and the US and prevent America from doing whatever we want? The UN is the unipolar world. तो एक यूएन के ढांचे या उसकी प्रोसेस के बारे में कुछ सुधार की रिपोर्ट्स में हमने कुछ देशों में यह भी आशा देखी है कि इन बदलावों से यूएन में जो यूनिपोलर सिस्टम है, जहां अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, उसका कोई भी गंभीर प्रतिनिधि या कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो इस कारगर ढंग से यह किस प्रकार से काम कर पाएगा? संयुक्त यूएन अमेरिकी डोमिनेंस के विरोध में एक बैलेंस का रोल निभाता है, और क्या यह एक संगठन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो शेष वर्ल्ड के अंदर और अमेरिका के बीच जो संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी यूनिपोलर करने से रोक सकता है? US power cannot be easily checked. First of all, with the disappearance of the Soviet Union, the US stand as a only superpower. Its military and economy power allow to the ignore the UN or any other international organizations. अमेरिका की पावर पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। तो फर्स्ट यह है कि यूएन की मौजूदगी में या उसकी गैर मौजूदगी में हम अमेरिका को एक अकेली पावर के रूप में देखते हैं, जिसमें उसकी मिलिट्री, उसकी इकोनॉमी और साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम अनदेखी भी नहीं कर सकते हैं। Secondly, within the UN is the interest of the US is considerable as the single largest contributor to the UN. The US has unmatched financial power. The fact that the UN is physically located within the US literally gives us Washington additional sources of influence. The US also has many national in the UN bureaucracy. In addition, with its veto power, the US can stop any moves that it find anyone or damaging to its interest or the interest of its friends and allies. The power of the US and its veto within the organizations also ensure that Washington has a considerable degree of say in the choice of the Secretary General of the UN. The US can and does use this power to spite the rest of the world and to reduce opposition to its policies. Now, UN को लेकर के कि इस तरह से हम ये देखते हैं कि सेकंड और जो हमारी यूएन है, इसके अंदर अमेरिका का एक खास इफेक्ट है। वह यूएन के बजट पे सबसे ज़्यादा अपना योगदान देने वाला कंट्री है। तो अमेरिका की इकोनॉमी बेजोड़ है, और एक तथ्य यह भी है कि अमेरिका की लैंडमार्क्स में यह स्थित है। तो यूएन जो है वो अमेरिका में ही है, और इसी कारण इसका इफेक्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई जगह ऐसी है जहाँ पर ब्यूरेंसी और इनके सिटीजन्स है। इसके अतिरिक्त भी अगर हमें देखते हैं कि अमेरिका कोई प्रस्ताव इसके द्वारा, इसके साथी राष्ट्रों द्वारा अनुकूल नहीं है, तो अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे तो वह वीटो से भी उसे रोक सकता है। तो अपनी पावर निषेधाज्ञा के कारण यूएन के महासचिव के चयन में भी अमेरिका अपना एक वजन रखती है, यानी कि वोटिंग सिस्टम में भी अपना एक पावर रखती है। तो अमेरिका की इस ताकत के बूस्ट में वर्ल्ड के में फूट डाल सकता है और देख सकता है कि उसकी जो पॉलिसी है कहाँ तक सामने आ सकती है। The UN is not there for a great balance of the US, and nonetheless, in a unipolar world in which the US is dominate, the UN has to bring the US and
the rest of the world into the decision over various issues. US leaders, in spite of their influent criticism of the UN, do see the organization as serve as purpose to bringing together our 190 nations in dealing with the conflict and the social economy development. As for the rest of the world, the UN provides us area in which it is possible to modify US attitude and policies, while it is the rest of the world and rarely the UN as the imperfect body, but without the worth of, given the growing conditions connecting the link between the society and issue, what we should call interdependence. It is hard to imagine and how more than 7 billion people would live together without an organization such as the UN. Technology promise to increase planetary interdependency, and therefore the importance of the UN will only increase. People and government will have to find way or supporting and using the UN and other international organizations involved that the constitution with their own interests and their interests of the international community more broadly. Now UN के बारे में हम लास्ट पैराग्राफ में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इसने पूरी अमेरिका के अंदर वर्क कर रखा है। इस तरह हम देखते हैं कि अमेरिका की ताकत पर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल लगाने में अमेरिका यूएन जो है अमेरिका की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिपोलर वर्ल्ड में जहां अमेरिका अधिक पावरफुल है तो यूएन जो है वो अमेरिका के कंट्री में ही है, इसलिए इसके ऊपर भी अमेरिका का प्रेशर है। ऐसा इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। तो यहाँ अमेरिका के अधिकतर लीडर या फिर यूएन की अधिकतर आलोचना करते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों में या सोशल या इकोनॉमी डेवलपमेंट के इश्यूज पर भी यूएनओ के जरिए 190 राष्ट्रों में एक साथ किया जा सकता है। जहां पर शेष वर्ल्ड की बात है तो उसके लिए भी यूएनओ एक ऐसा मंच है जहां पर अमेरिका अपने रवैयों के द्वारा, अपने पॉलिसी के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। और ये बात ठीक भी है कि वाशिंगटन के अपोजिशन में वर्ल्ड शायद ही कभी एकजुट हो पाता, पर अमेरिका की पावर पर अंकुश लगाना एक हद तक पॉसिबल था। लेकिन इसके बावजूद यूएनओ की वह जगह जहां अमेरिका के किसी खास रवैये की नीति की आलोचना की सुनवाई हो और बीच का रास्ता निकालने की रियायत देने की बात कहीं सोची जा सकती है। तो यूएनओ की थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना भी दुनिया और बदहाल होगी। आज जो विभिन्न समाज हैं या जो इश्यूज बने हैं इनके आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं, बल्कि ये पारस्परिक निर्भरता भी सिद्ध कर रही है। और आने वाले दिनों में वर्ल्ड में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए यूएनओ का महत्व और अधिक निरंतर बढ़ेगा, यानी उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती रहेगी। और लोगों को और गवर्नमेंट को भी यूएनओ और उसकी अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका सपोर्ट मिलेगा। और हम ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन तलाशेंगे जिनके द्वारा पूरे वर्ल्ड में वेलबींग छाई रहे।